Uh, let's start today's class. So in the last class, I was discussing क्या चल रहा था अभिलाष लास्ट क्लास में कल वी स्टार्टेड कल तो कर ही नहीं पाते। अच्छा, so yesterday I started two phase method, है ना, two phase method और artificial variable method. This method we use, कब यूज होता है भाई दयान खान, आप तो थे कल? जी बताइए। जी सर। जी टू सर। फेस मेथड की बात कर रहे थे कल, तो व्हेन वी यूज टू फेस जी मेथड, सर। क्या कहते हैं सर, जब आर्टिफिशियल मेथड लगाते हैं सर। आर्टिफिशियल वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जी सर। इसको हम जी सर। आर्टिफिशियल वेरिएबल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल मेथड? प्रॉब्लम देख के कैसे पता चलेगा? क्या कहते हैं सर, इसका जो कांस्टेंट जो होते हैं ना सर जी, कांस्टेंट जो होंगे वो बताओ यार, ये तो आसान बात है। देयर मे बी कांस्टेंट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, क्यों भाई? जी सर। जब आपको प्रॉब्लम में ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप कांस्टेंट दिख रहे हैं, है ना, तब यू हैव टू यूज सरप्लस वेरिएबल, और सरप्लस वेरिएबल का मतलब यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्शन की वजह से यू विल बी नॉट गेटिंग योर बेसिस मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। सो देन वी यूज दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल टू कंस्ट्रक्ट इनिशियल बेसिस मैट्रिक्स, है ना, ये आपका कंसेप्ट था। तो आई वाज सॉल्विंग वन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी थी, स्टार्ट ही करी थी शायद, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते। एल्गोरिथम मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, यू कैन सी माय यस्टरडे स्लाइड्स हु वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। So let us take one problem. Yesterday I was doing this problem. Use two phase method, solve the problem. Max of z is equal to 5x1 minus 4x2 plus 3x3, and subject to the constant 2x1 plus x2 minus 6x3 is equal to 20. 6x3 is equal to 20, and 6x1 plus 5x2 minus plus 10x3 less than equal to 76. 8x1 होल्ड करो, एक कॉल आ रही है। Yes, so this is the problem given to you, and here you can see that all the constants are less than equal to, है ना, but still I can take the artificial variable, because you know here if you will write this into standard form, yeah, so I will write it into standard form. The standard form, it will become, I am writing the standard form, so it will become 2x1 plus x2 minus 6x3, because here it is already equality, so I don't need to add any select surplus variable. Here I need two select variables, so you will be writing 6x1 plus 5x2 plus 10x3 and plus s1. Suppose I am taking select variable s1 is equal to 76, and 8x1 minus 3x2 plus 6x3 and plus s2 is equal to 50, है ना। Here you can see you have 1 2 3 4 5 variables and 3 equations. The problem is what, when you will be solving it, if you will construct the coefficient matrix of this, so coefficient matrix will be giving you 2 1 minus 1, and suppose it is 0 0 and 6 5 10, and it is 1 0 and 8 minus 3 6 0 1, and it is your coefficient matrix. And you can see here that when you will put n minus m variables, n minus m variables means you have to put two variables, है ना। n is 5 here, your n is 5 including two select variables, and m is 3, so you have to put n minus m. That means 5 minus 3, two variables to 0.
Now when you will put two variables to 0, what will happen? किसी भी टू का वेरिएबल को 0 पुट कर दें, यू विल नॉट गेटिंग एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की आएगी? नाउ इन दिस केस 2 by 2 है ना, but you are getting this system, so here you are unable to get identity matrix. So what I have to do to get starting initial basic feasible solution, I have to add one artificial variable. तो वो कहाँ ऐड करेंगे भाई? Where I will add that artificial variable? सर फर्स्ट रो In first equation में. Yes, यहाँ पर मुझे एक artificial variable use करना पड़ेगा because I cannot proceed otherwise, है ना? The first step of simplex method, you will be getting initial basic feasible solution. That means you will be getting an identity matrix, initial identity matrix. So I have to add this a1. और जब आपने a1 ऐड करा तो you can see it will read as a new variable. अब ठीक है, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई. देखो, now you have six variables, है ना? अब आपके पास कितना हो गया? 6 कर दूंगा इसको, n आपका 6 हो गया now. So you got n is equal to 6. तो 6 minus 3, that means 3 by 3 की मैट्रिक्स आपकी इजीली दिख रही है. अब a1 जब आया आपके पास तो क्या हो गया ये? Here it is, I can write a1. इस रो को मैंने यहाँ ऐड कर दिया. a1 का कोएफिशिएंट 1 है और बाकी सब में 0. So you can see this, it is dotted. I am getting dotted ना. This is your identity matrix you are getting, and you can initially get easily your initial basic feasible solution. तो यहाँ पर हमें artificial variable use करना पड़ा. So we get initial basic feasible solution which you can write easily by putting x1, x2, x3, 0, है ना? So what is this? a1 is 20 and s1 is 76, s2 is 50, है ना? ये आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया. लेकिन ये आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया एंड आई हैव टू रिमूव दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल. इसके लिए आई विल स्टार्ट विथ फेज 1, है ना? तो ये जो मैंने बताया था कि ये हम यूज करते हैं हमेशा व्हेन द इक्वालिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, इट इज ट्रू. और इस टाइप की प्रॉब्लम में भी इट इज ट्रू. यहाँ पर अगर आप देखें आपकी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेकिन स्टिल यू हैव टू यूज दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल. तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू है तब तो यूज करना ही है, बाकी कहाँ करना है ये हमें प्रॉब्लम को देख के पता चलेगा कि अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रही है तो हमें a1 का या a2, ये डिपेंड करता है हाउ मेनी आर्टिफिशियल वेरिएबल यू रिक्वायर्ड. व्हेन यू विल सी द प्रॉब्लम यू कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि कितने हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल चाहिए होंगे. ओके, यहाँ पर एक से काम हो गया. वी नीड ओनली a1. So now because whenever artificial variable introduces, you have to use two-phase method and another method, Brigham method, which I will explain later. So now I will take phase 1. Phase 1. Phase 1 start. Phase 1 में firstly what is the step? First step, you have to construct an auxiliary objective function. Auxiliary objective function, है ना? क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? इस a1 को रिमूव करना. तो auxiliary objective function क्या होता है? It is called max of z star is equal to minus a1. इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होंगे बिकॉज हियर आर ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल. तो मैं एक ऑक्सिलरी इक्वेशन पर फंक्शन लिखूंगा, मैक्स जेड स्टार इज माइनस a1, सिर्फ माइनस a1. अगर दो आर्टिफिशियल वेरिएबल होते तो माइनस a1 माइनस a2. इट इज फेज 1. नाउ आई विल कंस्ट्रक्ट द टेबल. दिस थिंग आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल इन माय लास्ट क्लास, तो आप वहां पर भी इसे देख सकते हैं इफ यू वांट. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट अ टेबल. आई एम टेकिंग. तो ये टेबल ध्यान रखना है हमें फेज 1 के लिए बनानी है. फेज 1 के लिए आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, अब आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्स जेड स्टार इज इक्वल टू माइनस a1. कीप इन माइंड. सो लेट अस टेक टेबल. थ्री इटरेशंस इसमें आएंगे आपके पास, तो थोड़ा सा टेबल को नीचे तक ले जाते हैं. सो हियर यू नो यू विल बी राइटिंग योर cb, दिस इज योर yb बेसिक्स, this is your xb, and here your all the entries x1, x2, x3, s1, s2, a1, and the last row is what is the last ratio? Last row Minimum ratio. minimum ratio. ठीक है, ये अब आपको याद हो गई होगी टेबल, कोई ज्यादा टफ नहीं है. सो नाउ आई विल स्टार्ट. एंड यहाँ पे ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या लेना है हमें, जो हमने न्यू कंस्ट्रक्ट किया है. तो न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर आप देखें ऑल द वैल्यूज आर 0 एक्सेप्ट a1. सिर्फ a1 का कोएफिशिएंट -1 है, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज 0. सो आई विल राइट cj, जो cj आई विल राइट द cj.
Cj will be what? 0, 0, 0, 0, 0 and -1. Okay. Now Cb, तो बेसिक Cb आपके पास है, Yb लिख लीजिए. Yb में क्या क्या आया था आपके पास? इन Yb you was having A1 S1 S2, ये तो था. पहले A1 लिख लो, S1 S2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके पास सॉल्व करना है क्योंकि A1 S1 S2, A1 S1 S2 की वैल्यूज क्या आई थी? ये लिखी थी मैंने इनिशियली 20, 76, 50. 20, 76, 50. Cb means its value, तो A1 की वैल्यू तो -1 है, बाकी सब 0, 0, you know. X1 X2 it is your same table जो आपके पास A था, it was your A 2 1 -6 0 0 1 then 6 5 10 1 0 0 and the last row was 8 -3 6 0 1 0, है ना. it is your table A, this is your A. ये जो A आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी, इसको मैंने फर्स्ट सीधा टेबल में लिख दिया उठा के. Now you know I will be calculating it. और मैंने आपको जो स्टेप्स बताए थे कि हम कैसे इसमें प्रोसीड करेंगे, है ना, जो एल्गोरिथम था. फर्स्टली आई विल कैलकुलेट जेड स्टार. व्हाट इज जेड स्टार? तो जेड स्टार आप देख सकते हैं, जेड स्टार इज हाउ मच? -20, है ना, क्योंकि जेड स्टार आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? सिर्फ -a1 है, तो a1 की वैल्यू जब 20 है तो इट्स वैल्यू इज -20. नाउ आई विल कैलकुलेट माई डेल्टा जे. डेल्टा जे का फॉर्मूला सेम है ना. क्या फॉर्मूला होता है? Cb x1 -1 into 2 0 0, तो -2 -0 इट इज -2. ये तो करते हैं Cb की इंटू, फिर Cb की इंटू सेकेंड कॉलम में करिए, इट विल बी कमिंग -1. देन इसमें करा तो इट विल बी कमिंग 6. और ये तीनों आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं, हमेशा 0 आएंगे. ये कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं आप. ओके, सो नाउ यू आर गेटिंग 2 negative values, so it is the most negative. So I will take this is the new entering variables and entering variable because it is the most negative, -2. So it will be enter, means new basic variable is x1. Now I have to take leaving variable. क्या निकाले भाई? XB upon X1. हाँ, तो बताओ जरा. तो 20/2 it is 10, है ना, क्योंकि सारे पॉजिटिव है. 76/6 it will be coming some 12.6 approximately and 50/8, so it will be coming 8 6 the 48 6.25. so this is the minimum you can see, so it will be leaving, है ना. ये leaving variable होगी. so and this 8 is the pivot element, है ना. you can write it, this is the pivot element जो कॉलम और रो में कॉमन आता है. it is your pivot element. चलो. So now because it is negative, so again I have to proceed further. So let us move in the next iteration. Next iteration. इन रोज को हम और एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि हमें 3 टेबल्स बनानी हो. 3 आइट्रेशंस में आंसर आएगा निकल गया आपको. चलो. So what is the next step? बताओ भाई, क्या करना होगा अब हमें? We have to यूनिटी पाइवट yes, एलिमेंट को iota. So we have to divide this pivot element, है ना, ये जो pivot element है आपका, इसको यूनिटी होना चाहिए. This is your pivot element, it must be unity. So that means ये कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या? लिंक सेम ही है भाई. अब तो मेरा मीटिंग जो लिंक सेम रहता है हर बार, उसी लिंक पे ज्वाइन कर दिया करिए जो आपको मैं हर बार शेयर कर रहा हूँ. सो आई विल डिवाइड दिस 8. तो पहले तो आप न्यू वेरिएबल्स लिख लीजिए अपने. तो द न्यू वेरिएबल्स विल बी व्हाट नाउ? a1 as it is, s1 as it is, only s2 is removing, x1 is entering. तो न्यू वेरिएबल आई एम एडिंग x1, है ना. इसकी वैल्यूज रख दीजिए. a1 is -1, rest of this 0. Now next step, divide by 8, है ना. Dividing by 8 because the pivot element is not unity. So you will be getting 50/8, that means 25/4, है ना. 8/8 is 1,
minus 3 by 8. Then this 6 by 8 I can write 3 by 4. 0 by 8 is 0, and then 1 by 8 and 0 by 8 is 0. This is the your next step. Now rest of the column entry should be 0, है ना? So what I have to do here, I have to take this row minus this. इसको अगर मैं R1 R2 से डिनोट कर लूँ, ये आपकी R1 रो थी, सपोज इट इज R2, इट वाज R3, तो ये तो हमारे पास दिस रो वी आर गेटिंग बाय टेकिंग R3 बाई 8, है ना? इसमें हमने क्या किया है, R3 बाई 8, ये न्यू रो हो गई आपके पास, इसको R3 स्टार कह देते हैं। अब क्या करना है आपको, R2 6 है ना, तो क्या करना है आप न्यू R2 स्टार लिखने के लिए, सपोज इट इज योर R2 स्टार, इसे बाद में डिलीट कर देंगे ना, तो क्या करना है आपको R2 स्टार लिखने के लिए यू R2 minus हाँ 6 R3 कर देंगे। यस R2 minus 6 R3 star. R2 माइनस 6 R3 स्टार, है ना, ये ध्यान रखना है। इस रो को इससे माइनस करना है जो न्यू आई है, तभी 0 बनेगा। तो ये तो आपके पास 0 हो ही जाएगा, है ना। और 76 माइनस 25/4 जब आप इसे माइनस करेंगे, मैं डायरेक्ट एंट्रीज लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है इसमें। 77/2 आ जाएगा ये। Similarly here you will be dividing, it will be coming 29/4, it will be 11/2, 1 minus 3/4 and 0. Okay, then in the first में twice है, you can see, so twice में if it is I am considering it is your suppose R1 star is a new row, तो ये कैसे मिलेगी आपको, you will take R1 minus 2 R3 star, है ना, R1 minus 2 R3 star, so it will be coming, ये तो of course 0 ही आएगा, it will be coming 15/2, then 7/4 minus 15/2, this is 0, minus 1/4 and 1. These are the entries you got. Now again I will check what is my Z star and what is my delta J. Keep in mind ये हम अभी phase 1 में चल रहे हैं, so Z star you will be calculating now. तो Z star कितना था, minus A1, तो A1 की वैल्यू 15/2 है, so minus 15/2, तो Z star अभी माइनस में है अवेलेबल यहाँ पे। Now I will calculate delta J, so delta 1, अब x1 क्योंकि यहाँ आ गया है तो डेल्टा 1 0 आएगा डेफिनेटली, जो बेसिक वेरिएबल से उनके करस्पॉन्डिंग डेल्टा J 0 आता है, ये भी 0 होगा, S1 भी 0 आएगा, A1 भी 0 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। x2 के करस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए इसे, तो इट विल बी कमिंग minus 7/4, it will be coming 15/2 and it will be coming 1/4, तो माइनस के वजह से still you have to calculate क्योंकि डेल्टा J is negative and it is the only negative, so again this will be entering, this is enter, this enters, leaving के लिए I will find the minimum ratio, तो minimum ratio यहाँ निकाल देते हैं, तो ये आपके पास क्या है 15/2/7/4, है ना, 15/2 अपॉन 7/4, ये आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा। सेकंड है 77/2 अपॉन 29/4, 77/2 by 29/4 by 29/4, इट इज कमिंग 5 पॉइंट समथिंग, चेक कर लीजिएगा। और ये थर्ड नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव होता है तो आई विल नॉट कंसीडर दिस नेगेटिव पार्ट, है ना, इसे एज इट बिलोंग। तो आप देख सकते हैं कि इट इज द मिनिमम 4 पॉइंट समथिंग, इट्स मिनिमम, सो दिस यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल लीविंग करेगा। हमारा मोटिव यही था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल को बेसिस से निकाल दें, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर A1 आपका लीव कर रहा है, देखो, है ना, it is leaving because it is the minimum ratio. So now you got your pivot element, the common element, this is your pivot element, it is the pivot element या key element भी बोलते हैं और leading element भी बोलते हैं, अलग अलग बुक की अलग अलग नोटेशन है pivot element. So now again I will divide by 7/4 and I will construct my new table. Okay, तो पहले न्यू वेरिएबल्स आपके पास A1 लीविंग, x2 इज एंटरिंग, सो यू गॉट x2 S1 x1, है ना। अब x2 का कोएफिशिएंट क्या था, न्यू उसमें 0 था, 0 0 0, ठीक। 7/4 से हम डिवाइड करेंगे, 7/4 से डिवाइड मीन्स 5, या कह सकते हैं 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बात है।
So when you will divide by 7 by 4, it will become 30 by 7. What I am doing here? So if it was your R1 star, so I am doing R1 star में what I am doing? R1 star by 7 by 4 है ना, इसको मान लो न्यू रो है R1 डबल स्टार, एक नाम रख लिया, डिवाइड करा है 7 by 4 से फर्स्ट रो में, तो 30 by 7 आएगा, ये 0 हो जाएगा, इट विल बिकम 1, इट इज माइनस 30 by 7, 0 माइनस 1 by 7 एंड 4 by 7, ठीक है, ये माइनस 1 by 7 इधर आएगा, हेयर माइनस 1 by 7। अब आपको पता है रेस्ट ऑफ द एंट्रीज शुड बी, है ना, ये आपके पास ये वाली रो है, तो रेस्ट ऑफ द एंट्रीज शुड बी जीरो, तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ 52 बाई, यहाँ पे आप 29 by 4 टाइम्स माइनस करेंगे इसमें, ठीक है, R2, अगर इसको R2 स्टार कह रहे हैं तो इन द न्यू रो R2 डबल स्टार कैसे आएगी आपके पास, ये R2 कितना टाइम्स करेंगे, माइनस R2 स्टार माइनस 29 by 4 R1 डबल स्टार ना, जो न्यू रो बनी है इस तरीके से इसका, तो ये इट विल बी कमिंग 0 0 256 by 7 1 2 by 7 एंड माइनस 29 by 7। सिमिलरली थर्ड रो में माइनस 3 by 8 है, तो दिस इज योर न्यू रो, इफ आई एम राइटिंग इट इज न्यू रो R3 डबल स्टार, so it will be coming how much, how you have to take R3 माइनस 3 by 8 माइनस करना है 1 से, है ना, तो आपके पास जो R3 स्टार है, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी है, तो यू कैन प्लस 3 by 8 ऑफ R1 डबल स्टार, ये जो न्यू रो है, सो इट विल बी कमिंग 55 by 7 1 0 माइनस 6 by 7 एंड 0 1 by 14 एंड 3 by 14। अब आपके पास ये लास्ट वो हो गई, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यू विल बी गेटिंग योर फाइनल। अब इस स्टेप से आगे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें अब यहाँ से फेज 2 पे मूव करना है, तो आपको फेज 2 पे कैसे जाना है ये देखना है। तो हेयर यू विल फाइंड योर जेड स्टार, तो जेड स्टार इज कमिंग हाउ मच, जेड स्टार इज हाउ मच, कितना होगा जेड स्टार बताओ, 0 0, क्योंकि जेड स्टार क्या था माइनस A1, अब A1 का तो कॉफिशिएंट नहीं है, 0 है, तो जेड स्टार 0 हो गया, है ना, और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज डेल्टा जे यू कैन कैलकुलेट सेम, तो डेल्टा जे विल कमिंग, ये तो 0 हो जाएगा, दिस इज 0 0, क्योंकि ये 0 है, देखो ये सब 0 0 होते चले जाएंगे, 0 0 0 0, बस लास्ट वन जो है आपके पास, क्योंकि ये माइनस 1 था इसका सीजे, इट विल बिकम 1। सो नाउ इट इज द केस ऑल डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, एंड इन द ऑक्सिलरी इक्वेशन नो आर्टिफिशियल वेरिएबल, यहाँ पे अगर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट होता बेसिस में तो हम कह देते इट हैज इनफीजिबल सॉल्यूशन, अगर है ना, जो मैंने आपको डिस्कस कर रहे थे केस कि अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो 2 केसेस थे, बट हेयर फॉर्चुनेटली देयर इज नो आर्टिफिशियल वेरिएबल, सो इट मींस दिस इज द इंडिकेशन वी कैन मूव टू फेज 2, है ना, सो यू कैन राइट हेयर सिंस all delta j, since all delta j greater than equal to 0 and optimum solution to the auxiliary, ओरिजिनल का नहीं, जो हमने ऑक्सिलरी एलपीपी बनाई थी, to the auxiliary LPP obtained, okay, and also no artificial variable present, no artificial variable present in the basis, now I can move to phase 2, so now phase 2, तो phase 2 में मैंने आपको क्या बताया था, phase 2 में हम ओरिजिनल और LPP लिखेंगे, तो ओरिजिनल LPP आपके पास क्या थी, मैक्स जेड इज इक्वल टू ये थी, देखिए
5x1 minus 4x2 plus 3x3. So original LPP was 5x1 and minus 4x2 minus 4x2 plus 3x3 प्लस 0x1 प्लस 0x2 है ना, क्योंकि s1 s2 तो रहेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो चुका है, तो आई विल नॉट राइट 0a1, इट हैज बीन रिमूव्ड. नाउ आई विल कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर दिस प्रॉब्लम. तो अब यहाँ पे जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे टेबल, तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. पूरी जो टेबल मैंने लास्ट टेबल अभी पीछे लिखी थी, वही टेबल एज इट इज आ जाएगी. सिर्फ एंट्रीज जो है न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वजह से चेंज हो जाएंगी. x1 x2 x3 s1 s2. a1 I will not write, I am dropping a1 because a1 has been removed. मिनिमम रेशियो है ना. तो ये जो न्यू टेबल आपकी बनेगी, इसमें वेरिएबल्स आपके वही सब, पूरी वही टेबल रहेगी जो हमने लास्ट छोड़ी है फेज 1 की. क्या थी? x2 s1 x1. तो वही टेबल आपकी यहाँ रहेगी, x2 s1 x1. बस इसकी जो वैल्यूज है, अब आपके पास क्योंकि न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो वैल्यू आप इसकी अब ये लिखेंगे यहाँ पे. तो x2 का कोफिशिएंट कितना है? -4. s1 का कोफिशिएंट 0, x1 का कोफिशिएंट 5 है ना. बाकी ये जो xb है, xb भी आप वही लिखेंगे जो लास्ट आपका यहाँ पर आया था लास्ट इटरेशन में, 30/7 52/7. ठीक है, यही टेबल रहेगी आपकी, 30/7 52/7 55/7 एंड x1 x2 से बस cj बदल जाएगा. एक आपका cj क्या हो जाएगा? 5 -4 3 0 0. सिर्फ cj और c भी चेंज होगा बिकॉज यू आर चेंजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यू आर टेकिंग द ओरिजिनल. रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी सेम. ये बीच की टेबल भी आपकी वही जो आपने लास्ट इटरेशन निकाला था एज इट इज लिख दूंगा मैं उठा के. 0 1 -30/7 0 -1/7 0 0 256/7 1 2/7 and 1 0 -6/7 0 1/14. ओके, 1/14. ये आपके पास न्यू टेबल आई. अब इसके लिए मैं फिर से वैसे ही प्रोसीड करूंगा सिंपलेक्स मेथड की तरह जैसे हम करते थे, क्योंकि अब आपके पास ये ओरिजिनल प्रॉब्लम निकल के आ गई विदाउट इवन. नाउ इट इज योर एज यूजुअल, यू विल कैलकुलेट योर z हियर एंड यू विल कैलकुलेट योर डेल्टा j. तो डेल्टा j हम वही निकालेंगे. अब चेंज आएगा आपके बाद डेल्टा j, क्योंकि c भी चेंज हो चुका है. तो डेल्टा j विल बी कमिंग, इट इज 0. x2 जब आप कैलकुलेट करेंगे 0, it will be coming 69/7 then 0 and it will be 13/14. So here you can say all delta j positive. पहली टेबल में आ गया. Since all delta j greater than equal to 0, it means we get an optimum solution. We get an optimal solution. वो वैल्यू क्या है आपके पास? तो x1 is 55/7, x2 is 30/7 and x3 is not present in the basis, x3 is 0 and the value of z star means z, इसे उठा के पुट कर दो. 5x1 5 into 55/7 minus 4 into x2 30/7 plus 3 into 0. So it is coming after solving 155/7. So it is the final answer. Okay, so here in this way you can solve this problem when you are having less greater than equal to या artificial variable. So two phase you have to use. First phase में you have to reduce in this way by removing artificial variable, and the second phase you can start with the same table. बताइए भाई. स्टूडेंट्स Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब इसका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जी होता सर. है, नो डाउट. फुल मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और आपके एग्जाम्स में आया करता है. तो अब तो अभी आप ऑनलाइन ले रहे हैं. लास्ट 3 ईयर से आपके ऑफलाइन एग्जाम होते थे आपके सीनियर्स के, तो मैं उसमें 2 फेस प्रॉब्लम पूछता था, लेकिन छोटी प्रॉब्लम पूछता था कि जो 2-3 टेबल में आ जाए. ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. 3 टेशन टेबल आपकी फेज 1 की बनी है और 1 फेज 2 की है. तो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट तो रहता ही है इसमें ऑप्टिमाइजेशन में, लेकिन डायरेक्ट प्रोसीजर है. कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत याद रखनी है चीजें, है ना. और ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स पहले जब CSR नेट का एग्जाम हुआ करता था,
उसमें पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सब्जेक्टिव आया करते थे। एमएससी के बाद जो नेट का एग्जाम होता है ना, सुना है नाम नेट का? Yes, sir. हाँ, तो पहले, sir. अब तो टोटल ऑब्जेक्टिव हो गया, पहले सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते थे उसमें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होते थे और हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता था, तो उसमें ये ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स अक्सर आया करती थी, इम्प्लेक्स मेथड वाली या ये फेज 2 वाली। तो ये सब प्रॉब्लम, तो ये एक प्रॉब्लम ली थी मैंने। इसमें देखो कुछ प्रॉब्लम्स है वो आप अपने आप ट्राई करेंगे, मैं यहाँ पे आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। एक तो प्रॉब्लम नंबर 424 है, पेज नंबर 108 पे। यू विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इनफिजिबल सॉल्यूशन आएगा। जब आप फेज 1 से स्टार्ट करेंगे, ये फेज 2 वाली प्रॉब्लम है, आर्टिफिशियल वेरिएबल इस्तेमाल होगा इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप फेज 1 में सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम में रहेगा विथ पॉजिटिव वैल्यू, तो वो केस होता है इनफिजिबल सॉल्यूशन का। ठीक है, और इसके बाद 2 मोर प्रॉब्लम्स आई एम गिविंग यू। 429, क्योंकि बुक की आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो मैं प्रॉब्लम लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। 113 पेज पर है, और एक है 432 113 पेज पे। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम्स आप करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या आंसर्स आते हैं। इसके बाद हेलो नेक्स्ट, सर। जी बताइए, सर बता सर दिया। ये बच्चे जो है इतनी देर से क्लास का अटेंडेंस का ऐसे स्क्रीनशॉट भेजे जा रहे हैं, इनको मना करिए। कौन भेज रहे हैं? सर आप अपना ग्रुप चेक कर लीजिए। जो लास्ट में अब मैं यार पढ़ाऊंगी, ग्रुप चेक करूं, जो लास्ट में आएगी मैं उसे मारूंगा, बाकी सब डिलीट कर दूंगा। भेजने दो, जब क्लास एंड होने वाली हो तब भेजें बच्चे, अभी से भेज के कोई मैं फायदा नहीं है। मैं लिख दे रहा हूँ ये बात, अभी कोई कंसीडर नहीं किया जाएगी, पता चला आपने भेज दिया और फिर हट गए। सर आप ही ले लीजिए करेंगे। यार मैं क्लास में अगर अटेंडेंस लूंगा, 40 मिनट्स की तो क्लास है, बताइए। सर स्क्रीनशॉट ले लो करिए। सर Window लास्ट में plus आप print स्क्रीनशॉट ले लिया। आता है। यार मैं लैपटॉप से लेता हूँ ना, लैपटॉप में स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी भी है नहीं, मैंने सर आ कहा जाती है सर विंडो प्लस। स्टैंडर्ड है मेरे पास यार, ये मैकबुक है, मुझे नहीं पता इसमें कैसे लेंगे। सर इस पे लेते हैं। फोटो खींच लिया करिए। चलो मैं देखूंगा। अब एक्चुअली इस टाइम प्रॉब्लम ये होती है ना, क्लास में ध्यान होता है आपके, लाओ चीजें निपटा दें, पढ़ा दें, अब उसमें मैं इधर उधर लग जाऊंगा तो बहुत सी चीजें रह जाएंगी आपकी। नेक्स्ट मेथड इज बिग एम मेथड। वैसे तो मुझे याद है कि कौन कौन जो है मेरी क्लास अटेंड कर रहा है। बिग एम मेथड, जो लोग अलीगढ़ में रह रहे हैं वो लोग मुझसे मिलने आ जाया करें कभी कभी, दयान के अलावा कोई नहीं मिलने आता यहाँ पे। बिल्कुल आ जाएंगे सर। आ जाएंगे सर, आ जाएंगे। चलो तो फिर आओगे तो अच्छा लगेगा, अभी कुछ डिस्कस करने आना, लेकिन फालतू की बातें करने नहीं। चलो, सर कितने बजे तक रहते हैं सर आप डिपार्टमेंट में? मैं मगरिब तक रहता हूँ, 6 बजे, 6:15 6:30 तक रहता हूँ। हाल चाल पूछने आ जाएंगे सर। कुछ डाउट्स लेके आना तो सही रहेगा जरा सा, उससे चेहरे भी याद हो जाते हैं चलिए। बच्चों के, वरना मैं डाउट्स पूछ लूंगा, आप लोग आ जाना, चलो देखूंगा कितना पढ़ रहा है। तो नेक्स्ट मेथड इज बिग एम मेथड, मेथड ऑफ पेनल्टीज, है ना। दिस इज आल्सो द मेथड विच वी यूज। अभी आपके पास 3 मिनट है तो मैं इसे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, कल इसकी प्रॉब्लम कराऊंगा, कल का मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास हुई हमारी फ्राइडे में। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड्स विच वी यूज व्हेन वी आर सॉल्विंग आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रॉब्लम्स, है ना। सो हेयर स्टेप 1, इसकी एल्गोरिथम लिख दे रहा हूँ मैं आपके को, सिर्फ एल्गोरिथम। स्टेप 1 इज सेम, राइट द एलपीपी। फर्स्ट थिंग तो सेम रहेगी कि राइट द एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, बिग एम मेथड आपका 2 फेज से थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव है, इसमें हमें 2 टेबल नहीं बनानी, क्योंकि इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, और ऑफ कोर्स इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियल वेरिएबल। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल वेरिएबल जरूर होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम इस मेथड का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, फिर तो आपका डायरेक्ट मेथड है ही। ठीक है, नाउ चेक इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, जाहिर आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो हम मूव करेंगे स्टेप 2 पे, है ना। सो स्टेप 2, क्योंकि जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया आपके पास, अब तो अब हमें आगे मूव करना है। नहीं, अगर हमारे पास ये हुआ, हाँ चेक
if there exists initial basic feasible solution, है ना, पहले चेक कर लेंगे। फिर अगर if yes move to step 3, अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा 3 पे चले जाएंगे। इफ नो देन मूव टू स्टेप 2, तो हमारा स्टेप 2 आएगा। ये जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में क्या होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल आप ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड में, है ना, और असाइन अ वेरी हाई पेनल्टी, इसे हम पेनल्टी कहते हैं, से एम से नोट कर देंगे, टू दीज वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स? जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स वाले हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं, है ना, इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम उसकी वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओरिजिनल लेके चलेंगे, लेकिन उसमें उसको एक हाई पेनल्टी m के साथ रखेंगे, ठीक है, बहुत हाई वैल्यू रखेंगे, मतलब m इज वेरी बिग नंबर, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख लेंगे इसको ऐसे ही। फिर स्टेप 3 आपका वही है एज इट इज, सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे, अप्लाई सिंप्लेक्स मेथड एंड सॉल्व।